السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ساری دنیا کا نظام بحسن خوبی انجام دے رہا ہے۔ اس کے بعد درود و نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ جی تمام طالبات تو دیکھیے، آپ لوگوں کو جو ہوم ورک دیا گیا تھا کہ حروف تہجی کی شکلیں کس طرح ہوتی ہے اور ان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، یہ آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا پچھلے سبق میں۔ آپ لوگوں کا پچھلا سبق صفحہ نمبر 11 پر جو سبق تھا وہ یہ تھا کہ حروف تہجی کی شکلیں کس طرح ہوتی ہے اور ان کو کس طرح پہچانا جاتا ہے، اور کس شکل کی مطلب کس حرف کی شکل کتنی کتنی ہے، وہ اس سبق میں پڑھایا گیا۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی اچھی طرح سے شناخت کر لیا ہوگا۔ تو دیکھیے، الف کی شکل کس طرح ہوتی ہے، بے کی شکل کس طرح ہوتی ہے، اسی طرح الف سے لے کر یہ تک کیا ہے تمام حروف کی کیا ہے شکلیں یہاں پر بتا دی گئی تھی۔ اب ان شکلوں کو پہچاننے کے بعد جو آپ لوگوں کا سبق اگلا سبق ہے وہ ہے صفحہ نمبر 12 پر۔ صفحہ نمبر 12 پر جو سبق ہے آپ لوگوں کا، وہ دیکھیے دو حروفی آسان الفاظ، یعنی اب ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ حروف کی شکل یعنی اردو میں حروف تہجی کی شکلیں کس طرح ہوتی ہے۔ تو اب وہ ان حروف تہجی کی شکلوں کو لے کر ہمیں کیا ہے، اب الفاظ کو ملا کر پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب یعنی ایک جملہ بنانے کے لیے، ایک لفظ بنانے کے لیے ہمیں کیا ہے، حروفوں کو جوڑنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ان حروف کو جوڑنے کا طریقہ کس طرح ہے، اس کو جوڑنے کا قاعدہ کس طرح ہے، اب ہم یہ سبق پڑھیں گے۔ یعنی ایک حرف سے دوسرے حرف کو ملا کر کس طرح پڑھیں گے، انشاءاللہ یہ کیا ہے آج کے سبق میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے صفحہ نمبر 12، یہ آپ تمام کو نظر آ رہا ہے؟ جی میم۔ جی میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے؟ جی الحمدللہ میم۔ جی الحمدللہ۔ جی تو دیکھیے، دو حرفی آسان الفاظ یعنی دو حرف کو ملا کر کس طرح پڑھا جاتا ہے وہ یہاں پر اب بتایا جائے گا۔ تو اب دیکھیے، سب سے پہلا جو ہمارے پاس ہمارا سبق ہے وہ کیا ہے، الف بے زبر اب۔ کس طرح پڑھیں گے ہم اس کو، الف بے زبر اب۔ یہاں پر دیکھیں گے الف ہے، الف کے اوپر کیا ہے، زبر لگا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ہمیں اب عربی میں بھی کیا ہے، زبر موجود ہوتا ہے، مگر یہاں پر اردو میں ہم سیدھا الف بے اب ایسا نہیں پڑھ سکتے، اس کو کیا ہے الف اور بے کو ملائیں گے تو کس سے ملیں گے، زبر سے ملیں گے۔ تو یہاں پر ایک قاعدہ ہے، الف بے زبر اب، یہ دونوں کو اگر یہ الف اور یہ بے کو زبر سے ملا کر پڑھیں گے تو اس طرح یہاں پر تیسرے خانے میں جو موجود ہے دو لفظ اس طرح بنیں گے، الف بے زبر اب۔ سمجھ میں آیا؟ جی سمجھ میں آیا؟ اس طرح پڑھیں گے اس کو، الف بے زبر اب۔ جی طالبات موجود ہیں کلاس میں؟ جی جواب دیجیے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ جی
अगर समझ में नहीं आया तो बोलिए, इंशाल्लाह दोहराया जाएगा। तो अलीफ बे जबर अब। हाँ, आप लोग जवाब देंगे तो मैं समझूंगी कि आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। जी मैम। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये हर्फ क्या है? राम रे। रे। ये क्या है? बा। बे। रे बे जबर रब। रब। रे और ये बे दोनों को जबर से मिलेंगे तो इस तरह यहाँ पर तीसरे खाने में जो मौजूद है रे बे जबर रब, इस तरह हमें क्या है, दो हरफी आसान लफ्ज यहाँ पर मौजूद मिलेगा। तो रे बे जबर रब। रब। इसी तरह यहाँ पर तीसरे खाने में क्या है, दाल लाम जेल। ये पहले और दूसरे खाने में जो है जबर की मिसाल यहाँ पर बताई गई। हम क्या है, इससे पहले मतलब पिछले सबक में हम क्या है पढ़ चुके थे कि हुरूफ तहज्जी को जबर लगाने से किस तरह पढ़ेंगे, जेर लगाने से किस तरह पढ़ेंगे, और क्या है पेश लगाने से किस तरह पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है ना तीन क्या है मिसालें यहाँ पर मौजूद है हमारे सामने कि अलीफ को जबर लगाने से किस तरह पढ़ा जाएगा, रे को जबर लगाने से किस तरह पढ़ा जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पर दाल लाम जेर दिल क्या होगा, ये दाल लाम दिल। क्या है, दाल लाम जेर दिल क्या है, दाल लाम जेर दिल। इसी तरह दाल नून जेर दिन, दाल नून जेर दिन। अब पेश की मिसाल देखिए, पेश की मिसाल क्या है, दाल मीम पेश दुम। ये दाल मीम पेश दुम। जी, दाल मीम पेश दुम। यहाँ पर जबर जेर और पेश तीनों की मिसालें हमारे सामने दी गई है। अब हम इन अल्फाज को देखकर क्या है, आप लोगों को चाहिए कि दूसरे अल्फाज भी ढूंढकर लिखकर बताएं होमवर्क में। जी, समझ में आया। तो देखिए आज का हमारा सबक ये है, मैं आपको और भी मिसाल देती हूँ जो आपको होमवर्क दिया जाएगा इंशाल्लाह। वो इस तरह रहेगा कि आपको क्या करना है, जैसे अलीफ बे जबर अब है, इसी तरह क्या है और भी एक इसी के वजन पर, यानी दो हर्फ जो मिलकर हैं जबर की शक्ल में दो हर्फ, और क्या है जेर की शक्ल में दो हर्फ, दो मिसालें, और पेश की शक्ल में क्या है दो दो मिसालें आप लोगों को लिखकर लेकर आना है। तो देखिए अलीफ बे जबर अब है, तो इसी तरह और एक मिसाल में आपके सामने, आप सोचना कि इस तरह और भी तमाम हुरूफ तहज्जी जिस तरह मौजूद हैं उसी तरह क्या है, उसमें से आप क्या है दो हर्फ को मिलाकर जबर लगाएं, फिर उसे क्या है उस दो हर्फ को मिलाकर जेर लगाकर लिखें, फिर इसी तरह क्या है दो हर्फ को लेकर मिलाकर क्या है पेश लगाकर लिखें। तो इस तरह क्या है आप लोगों को मतलब आहिस्ता आहिस्ता क्या है आपकी उर्दू में क्या है इंशाअल्लाह तरक्की होगी। तो देखिए अब अलीफ बे जबर अब जिस तरह है, इसकी एक मिसाल में दूसरे मतलब बाहर से ये दे रही हूँ कि सीन रे जबर सर, इसी तरह सीन रे जबर सर। और एक मिसाल आप देखिए, जीम बा जबर जब। जी जीम बा जबर जब। हाँ, जीम जीम बे जबर जब, माशाल्लाह अच्छा दिए। तो इसी तरह क्या है आप लोग क्या है अलीफ बे जबर अब जिस तरह यहाँ पर दो दो मिसालें दी गई है, इसी तरह आप भी अपनी तरफ से दो दो मिसालें लिखकर क्या करना है आपको, आपके पर्सनल नंबर से मेरे नंबर पर क्या है डालिए, आप ग्रुप में मत डालिए, क्योंकि एक कोई अगर लिखकर ग्रुप में डालेंगे तो दूसरा क्या है वही देखकर क्या है लिख के मतलब फिर उसी की कॉपी करके या क्या है लिखकर डाल सकते हैं। इसीलिए क्या है आप क्या है अपने अपने पर्सनल नंबर से क्या है भेजिए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर ये हो गया दाल लाम जेर दिल। तो इसकी और एक मिसाल दीजिए आप लोग। जीन नून जेर जिन। हाँ, जीम नून जेर जिन, माशाल्लाह। और इसी तरह ज़्वाद लाम क्या है ज़्वाद दाल जेर जिद। ये दो हो गए। फिर और एक क्या है पेश की मिसाल, पेश की मिसाल कैसे आएंगी, चीम नून पेश चुन। जी समझ में आया आपको। जी मैम। दाल मीम पेश दुम कैसा है, और एक आपको अगर कोई मिसाल मालूम है तो बोलिए आप लोग।
गाफ जी मीम पेश मैम गुम। हाँ, गाफ में पेश गुम होगा, और गाफ लाम पेश गुल, जिसको जी फूल कहा जाता है। गुल, गुल के माने फूल, गाफ लाम पेश गुल। ठीक है। इस तरह क्या है, आज जिसको अगर कोई एक भी मिसाल अगर लिखना चाह रहे, एक मिसाल अगर मिली आप लोगों को तो वो भी मुनासिब है आप लोगों के लिए। मगर आपका जो होमवर्क दिया गया है, दो दो मिसालें आपको क्या है, जबर की शक्ल में दो मिसालें, और जेर की शक्ल में दो मिसालें, और पेश की शक्ल में दो मिसालें क्या है आप लोग लिखकर लाना है। ये सबक आप लोगों को मुकम्मल समझ में आ गया? जी बोलिए, कितनी तौलीबात हाजिर है यहाँ पर? जी मैम समझ जी में जी मैम। 14 तौलीबात हाजिर हैं। तमाम तौलीबात को ये सबक समझ में आ गया? आ गया मैम। जी माशाल्लाह। तो देखिए आप लोग क्या है, इसको एक बार क्या है आप लोग भी पढ़कर सुनाइए। ठीक है। अलीफ बे जबर क्या होगा? अब। रे बे जबर रब। रब। दाल लाम जेर दिल। दिल। दाल नून जेर दिल। दिल। दाल मीम, दाल मीम पेश दुम। तो इस तरह है यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 मिसालें हैं, जबर जेर पेश तीनों, तो तीनों की मिलाकर। तो अब इसके क्या है, इसी की शक्ल में आज का सबक बहुत आसान है, आप लोग इंशाल्लाह लिख सकते हैं। तो अब जो इसके बाद जो आपको टाइम मिलेगा उसमें क्या है आप लोग ढूंढ कर, आप क्या है कल के दिन ढूंढ कर लिख कर बताइए। फिर इंशाल्लाह चहारशंबे के जिन दिन जब जो क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें आप लोगों की गलती की इस्लाह भी की जाएंगी, और जो लिखे माशाल्लाह उनको उनका भी सबक क्या है देखा जाएगा। तो ये सबक आप लोगों को मालूम हो गया ना? तो आज का जो सबक था वो क्या है, दो दो अल्फाज को किस तरह मिलाकर पढ़ना है जबर की शक्ल में, और दो अल्फाज को मिलाकर किस तरह पढ़ना है जेर की शक्ल में, और यह दो अल्फाज को मिलाकर किस तरह पढ़ना है पेश की शक्ल में। तो इसी ये क्या है अब पिछला सबक जो है ये शक्लें तमाम लोगों को क्या है समझ में आ गई? जी मैम समझ में आया मैम। हाँ, ये तमाम शक्लें आप लोगों को जहन में रखना है। उसके बाद देखिए सफा नंबर क्या है, सफा नंबर 10 पर जबर जेर और पेश था। ये भी आप लोगों को मालूम हो गया ना? जी मैम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आप लोग क्या है कल ये जो होमवर्क दिया गया है वो करने के बाद आप लोगों को क्या है ये पूरे जो भी आप लोगों को पढ़ाया गया है इंशाल्लाह उसका क्या है टेस्ट रहेगा कि आप लोग किस तरह पढ़ रहे हैं, या मतलब आपको समझ में आया है, या आप ये तमाम असबाब जो है आपको जो दिए गए वो आपने समझा या नहीं समझा, उसका क्या है मालूम मालूम हो जाएगा। ठीक है। आप लोग क्या है पूरे असबाब क्या है अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, पिछला सबक भी क्या है दोहराते रहिए। ठीक है। और किसी को कुछ सवाल है? जी किसी को कुछ पूछना है? जी तालिबात तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही मैम। हाँ, आप लोगों को कुछ भी सवाल नहीं है ना? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया। क्योंकि आज का सबक थोड़ा ही है, आप इसको लिख कर लाइए, फिर इंशाल्लाह चाहरशंबे के दिन क्या है आपको सबक दिया जाएगा। दूसरा सफा नंबर 13 पर जो है इंशाल्लाह वो क्या है आप लोगों का सबक रहेगा। तो आप लोगों को क्या है ये मिसालें ढूंढ कर लिख कर लेकर आना है। ठीक है। दो मिसालें लिख सकते हैं या और भी देना चाहिए आप लोगों को मिसालें, मतलब 5 5 मिसाल, जबर की 5 मिसाल, जेर की 5 मिसाल, और क्या है पेश की 5 मिसाल। जी मैम। जो 5 लिख सकते हैं वो 5 लिखिए, जो 2 लिख सकते हैं वो 2 लिखिए। हाँ, कोशिश करिए कि 5 लिखें, क्योंकि उस तरह से क्या है आप लोगों को उर्दू सीखने में आसानी हो जाती। ठीक है। आप लोगों को कुछ भी सवाल नहीं है तो फिर पिछले असबाक में भी अगर कोई कुछ भी दुश्वारी या मुश्किल है तो पूछ सकते हैं आप लोग।
किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? नहीं। जी आप लोग रिकॉर्डिंग करके नहीं डाले? जी मैम। लोगों को हुर्फ़े तहज्जी ज़बर ज़ेर पेश के अंदाज में, मतलब आप लोगों को रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को ऑडियो भेजो बोली थी ना हमें ग्रुप में। जी मैम। तो आपका काम आजकल क्या है, रिकॉर्डिंग करके हुर्फ़े तहज्जी ज़बर ज़ेर पेश की शक्ल में वो डालिए, और क्या है आज के जो 5 मिसालें लिखने के लिए दी गई थी, वो 5 मिसालें भी क्या है आप लोग लिखकर बताइए, ठीक है? जी मैम इंशाल्लाह। ठीक है, किसी को कुछ भी सवाल नहीं है ना? जी क्लास के इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा। रिकॉर्डिंग कई की बोल रहे हैं मैम? जी रिकॉर्डिंग कई की बोल रहे हैं आप ऑडियो? वही ना, इससे पहले की पिछली क्लास में आप लोगों से कहा गया था कि अलीफ जबर आ, बे जबर बा, पे जबर पा, इस तरह से पढ़ने के लिए अलीफ पेश हु, बे पेश बू, पे अच्छा पेश पू, जी अलीफ जेर ई, बे जेर बी, पे जेर पी, इस तरह से पढ़ने के लिए, मतलब आप लोगों को पढ़ने, तलफ्फुज जो है ना आप लोगों का सही है या नहीं देखने के लिए मैंने रिकॉर्डिंग भेजने के लिए कहा था। अच्छा जी मैम, ठीक ठीक है है इंशाल्लाह। जी, तमाम लोग क्या है ग्रुप में रिकॉर्डिंग डाल दीजिए, और जो 5 मिसालें आप लोग को लिखने के लिए दी गई थी वो अपने पर्सनल नंबर से क्या है आप लोग डालिए, ठीक है? जी इंशाल्लाह जी ठीक है इंशाल्लाह। जी, क्लास के इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम।